Good morning, students. We are going to have the final video on the molecular basis of inheritance series. Me, Dr. Pratima Tripathi, I am here to continue with you with this series. So let's begin. Question number 1 says the correct sequence of information from living organisms is here. There is a picture where I have shown you how the complete journey of right from DNA to DNA fingerprinting and now the DNA fingerprinting in use, how this whole journey was there adopted and how this whole journey was in sequence with time. So the question asks how the correct sequence of information flow in living organisms, and we have already studied the central dogma. So the correct sequence, what could be the correct sequence? These are the options, and the correct sequence is DNA to RNA to protein. So answer B is the correct answer. Okay. Coming to question number 2, the central dogma was proposed. As I told you just now, that the correct sequence of information flow DNA to RNA to protein is also known as central dogma. So the central dogma was proposed by who proposed central dogma? Watson, Craig, Chargaff, or Griffith. And this picture appears again because all these questions are related to this particular picture. And the correct answer is B, Crick. Okay, so Crick proposed the central dogma. You should remember this. Question number 3, gene regulation primarily helps in. जीन रेगुलेशन प्राइमरीली किस चीज में हेल्प करता है? सो इंक्रीजिंग म्यूटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन. जीन रेगुलेशन की बात हो रही है, तो जीन रेगुलेशन किस चीज में आपको हेल्प करेगा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो आपको फोटोग्राफ दी हुई है उसमें व्हाट विदाउट रेगुलेशन क्या होगा, विथ रेगुलेशन क्या होगा. इफ इट इज विदाउट रेगुलेशन देन डीएनए मे, इफ नॉट रेगुलेटेड, चेंज इनटू प्रोटीन, and those could be non-useful proteins, or you can say proteins which are not very much useful for the body, and they may create problem if absorbed in a particular metabolic pathway. So and this whole process is a continuous waste of energy. At the same time, if you look at with regulation, what happens, the DNA may be turned off or on, will be converted to RNA, then will be converted to protein when required by the body, so that energy will be conserved. Okay, so here the cells that have the regulation into them expresses genes only when required. So gene regulation primarily helps in what? Energy conservation. B is the correct answer. Coming to question number 4, genes are expressed. genes कैसे express होते हैं? Continuously, randomly, only when required, never. हमेशा expressed form में होते हैं, कभी कभी होते हैं, जब जरूरत हो तभी होते हैं, या कभी नहीं होते हैं. सो वेरी मच ऑब्वियस कि अभी हमने देखा फोटोग्राफ में कि जीन्स तभी एक्सप्रेस होते हैं when required. genes express only when required. So answer C is the correct answer. Coming to question number 5, which structural gene codes for beta galactosidase? ये आपका लैकोपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है. Here comes the picture on लैकोपेरॉन. एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए. लैकोपेरॉन के स्ट्रक्चर में एक रेगुलेटरी जीन होती है जो कि रिप्रेशर प्रोड्यूस करती है, एंड दिस रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, एंड देन व्हेन द इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर, देन उसके डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑपरेटर्स आपके जो हैं वो आपका प्रोमोटर है, एंड अप स्ट्रीम जो है आपकी जीन्स है लैक, जेड, वाई और ए. तो व्हेन विच स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, यहाँ पर आपका पिक्चर से करेक्ट आंसर आप देखिए कि बीटा गैलेक्टोसिडेज को कौन सा जीन कोड कर रहा है? लैक जेड. सो लैक जेड, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस नीट 2027 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर in one form or the other. So you should be very clear with these concepts. Operator gene functions as. Operator region किस तरह से फंक्शन करता है? पिक्चर देखिए. ऑपरेटर रीजन किस तरह से फंक्शन करता है? आप देखिए, रिप्रेशर जो है ऑपरेटर पर ही बाइंड होता है या नहीं बाइंड होता है. ठीक है, ऑपरेटर के बाइंड होने या ना होने से ही उसके जो अप स्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में जो जीन्स हैं उनको देखा जाएगा कि वो रेगुलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही है, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ और नॉट. सो द ऑपरेटर एक्चुअली एक्ट्स एज द रेगुलेटरी switch. Okay, so the correct answer is C. Coming to question number 7, permease is encoded by. permease gene कैसे मतलब कौन सा जीन जो है permease को encode करता है? And see here, LAC-Z was encoding beta galactosidase, LAC-Y encodes permease, and LAC-A encodes trans acetylase. ठीक है,
इनके रोल्स भी हमने नीचे लिख दिए हैं. सो यू शुड रिमेंबर दीज पिक्चर्स को अगर आप रिमेंबर करके रखते हैं तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो हियर परमेज इज एनकोडेड बाय लैक वाई एंड द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू. आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है? ठीक है. तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, वो इन जीन्स को एक्सप्रेस कराता है. वो कहाँ पर बाइंड करेगा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, प्रोमोटर रीजन में बाइंड करता है. अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी होगी कि जब रिप्रेशन ऑपरेटर से बाइंड रहता है उस वक्त आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो इट विल नॉट बी एबल टू मूव. ठीक है. और जब मूव नहीं करेगा तो उसके जो डाउन स्ट्रीम में जो आपके ये है, सॉरी, जो अप स्ट्रीम में आपके जीन्स है लैक ZYA, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे. ठीक है. तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन. The lac operon remains off because lac operon off क्यों रहता है? क्योंकि आप ये देखिए लैक ओपेरॉन किस कंडीशन में ऑफ होगा? जब आरएनए पॉलीमरेज, लैक ओपेरॉन ऑफ होने का मतलब कि इट वोंट बी, द जीन्स वोंट बी able to encode the requisite enzymes, मतलब वो एक्टिवेट, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे लैक ZYA. ये कब होगा? जब रिप्रेसर बाइंड करके बैठा रहेगा ऑपरेटर के साथ. आप इस पिक्चर को देखें, जब रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में होगा इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर सो दैट आरएनए पॉलीमरेज वोंट बी एबल टू मूव फ्रॉम द प्रोमोटर टू द ऑपरेटर. ठीक है. रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाता है जिसके लैक ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और फिर एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगी. दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ऑपरॉन ऑफ कंडीशन. और ये कब होगा? जब एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होगा. मतलब मीडिया में अगर लैक्टोज नहीं है या सराउंडिंग में लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज जब नहीं है तो उस वक्त ये लैक ओपेरॉन एक्टिवेट नहीं होगा और ये कंडीशन क्रिएट होगी जो कि आपको पिक्चर में दिखाई गई है. नाउ द क्वेश्चन सेज लैक ओपेरॉन रिमेन्स ऑफ बिकॉज. लैक ओपेरॉन ऑफ कब रहता है? ऑप्शंस आर आरएनए पॉलीमरेज इज एब्सेंट, repressor binds to the operator, lactose binds to the operator, lactate is deleted. So the correct answer is B, repressor binds to the operator. जब repressor bind होता है operator से तो RNA polymerase won't be able to move forward and hence the genes won't be able to express, and that's why there is no use of gene activation. और ये condition तब होती है जब lactose हाई नहीं है मीडिया में. तो ठीक है. Coming to question number 10, in absence of lactose, lactose के absence में क्या होगा? अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि lactose के absence में genes activate नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि repressor active form में होता है. ओके. repressor is active. ठीक है. एंजाइम्स, ऑप्शन 1 देखिए, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज. नो एंजाइम सिंथेसिस विल टेक प्लेस बिकॉज लैक ZYA आर नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड. ट्रांसक्रिप्शन occurs? No, it won't occur because RNA polymerase is not able to move forward and the genes are not able to be transcribed. Repressor remains active. Yes, आप पूरी पिक्चर देखिए तो repressor is active. That's why it is binding to the operator and is not allowing the RNA polymerase to move forward. Operon is induced? No, operon is not induced. It is switched off. So the best answer and the correct answer is answer number C. Coming to question number 11, which statement is correct? Look at the statements. Repressor inactive, structural genes transcribed, operon switched on, repressor blocks transcription. ये पिक्चर में आप देखकर बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. रिप्रेशर इनएक्टिव है, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब हो रही हैं, ओपेरॉन स्विच ऑन है, या रिप्रेशर. आंसर इज रिप्रेशर ब्लॉक्स द ट्रांसक्रिप्शन. वाई? मतलब रिप्रेशर इनएक्टिव है या हाफ इंफॉर्मेशन एक्टिव है? नहीं. अगर पूछा जाए सिर्फ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और लिखा रहे रिप्रेशर इनएक्टिव, तो अब पिक्चर आपको ना दी रहे तो दिस इज एन इनकरेक्ट मतलब स्टेटमेंट. उसमें आपको क्लियर नहीं होगा कि किस कंडीशन में रिप्रेशर इनएक्टिव है. स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब, यहाँ भी ये हाफ इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है अंडर विच सिचुएशन द स्ट्रक्चरल जीन्स आर गेटिंग ट्रांसक्राइब. ओपेरॉन स्विच ऑन, हियर अगेन दिस इज अ हाफ क्वेश्चन, मतलब आधी इंफॉर्मेशन है. लेकिन रिप्रेशर ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन, ये अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है कि रिप्रेशर ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है. यस, करता है. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है. अगर रिप्रेशर बंद है ऑपरेटर पर तो वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेगा. ठीक है. So this is the correct answer. Coming to question number 12, the inducer molecule in lac operon is. Inducer molecule lac operon में क्या होता है?
आप देखिए यहाँ पर फिर से प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज होगा मीडिया में तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड टू एलोलैक्टोज व्हिच इज ए इंड्यूसर। एलोलैक्टोज जाकर रिप्रेशर के साथ बाइंड कर जाएगा जिससे कि रिप्रेशर एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। उसके इनएक्टिव होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रमोटर, विल मूव टू द ऑपरेटर एंड विल फर्दर मूव टू एनकोड जीन्स या तो ट्रांसक्राइब जीन्स ZYA and hence the enzymes beta galactosidase, permease and transacetylase will be produced and operon will be functional, it will be switched on, and this happens when there will be lactose. क्यों? क्योंकि lactose gets converted to allolactose which is a inducer, which acts as inducer. So here indirectly lactose is acting as a inducer. So inducer molecule in lactoperon is options आपका दिया हुआ है lactose, galactose, allolactose and permease, and the correct answer is allolactose. Allolactose is another form of lactose which is an active form, ठीक है, and it acts as inducer in the lactoperon. Okay, so the correct answer is C, allolactose. पिक्चर्स याद रखिएगा, पिक्चर्स याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी और आंसर्स क्या होने चाहिए वो एग्जैक्टली आप बता पाएंगे। द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इन लैक्टोपेरॉन इज, अभी हमने देखा क्वेश्चन में कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल लैक्टोपेरॉन में क्या होता है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, सो आंसर इज सी। चलिए, एलोलैक्टोज बाइंड्स टू, एलोलैक्टोज किससे बाइंड करेगा, प्रोमोटर, ऑपरेटर, रिप्रेशर, आरएनए पॉलीमरेज। तो आप अगर देखें तो इसमें आप पूरे पिक्चर में देखिए एलोलैक्टोज जो है वो बाइंड किससे कर रहा है, रिप्रेशर से जाकर बाइंड कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, keep remembering the picture. Coming to question number 15, presence of lactose leads to, presence of lactose क्या करेगा, अगर lactose present है मीडिया में तो what will it do, ओपेरॉन को ऑफ करेगा, नहीं ऑफ करेगा, ठीक है, ओपेरॉन ऑफ नहीं होगा। रिप्रेशर एक्टिवेट करेगा, नो, रिप्रेशर विल बी एक्टिव ओनली व्हेन देयर विल बी नो एलोलैक्टोज, एंड एलोलैक्टोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज नहीं है मीडिया में, तो रिप्रेशर एक्टिवेट नहीं होगा, रिप्रेशर एक्टिवेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में रिप्रेशर इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस होगा। डीएनए रेप्लिकेशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, कि जब प्रेजेंट लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो ZYA हैं ये एक्टिवेट होंगी या ट्रांसक्राइब होंगी एंड दे विल प्रोड्यूस द रिलेटेड एंजाइम्स व्हिच विल बी फंक्शनल, ठीक है। असर्टिव रिजल्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का क्या हो सकता है। लैक्टोपेरॉन इज इंड्यूसिबल, एलोलैक्टोज इनएक्टिवेट्स द रिप्रेशर। लैक्टोपेरॉन इंड्यूसिबल होता है या एलोलैक्टोज इनएक्टिवेट्स द रिप्रेशर, क्वेश्चन इसी डायग्राम से रिलेटेड है एंड द करेक्ट आंसर इज ए, यस। इंड्यूसिबल है मतलब कि लैक्टोपेरॉन को एक इंड्यूसर चाहिए, ठीक है, और वो इंड्यूसर कौन होता है, एलोलैक्टोज। मतलब जो रीजन में आपका दिया हुआ है कि एलोलैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, यस, एलोलैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है और रिप्रेशर को इनएक्टिवेट करता है। लैक्टोपेरॉन इज इंड्यूसिबल मींस देयर इज अ इंड्यूसर इन लैक्टोपेरॉन, यस, देयर इज अ इंड्यूसर इन लैक्टोपेरॉन। सो आंसर ए इज द बेस्ट एंड द करेक्ट आंसर। Coming to question number 17 which is a match the following condition, देखिए ओपेरॉन देखिए, लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या होगा ओपेरॉन उस कंडीशन में, ओपेरॉन क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो ओपेरॉन क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑन होगा कि ऑफ होगा। आपको अगर पूरी पिक्चर सारी अभी तक रिकॉल हो रही है जो मैंने बताया, तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ओपेरॉन ऑफ होगा, ठीक है, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ये आप देख लीजिए चार्ट, लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज नहीं प्रोड्यूस होगा जिसके कारण रिप्रेशर एक्टिव रहेगा और ओपेरॉन से बाइंड करके ओपेरॉन को ब्लॉक कर देगा जिसके कारण कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगी। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो एलोलैक्टोज को प्रोड्यूस करेगा जिससे कि एलोलैक्टोज एज एन इंड्यूसर विल बाइंड टू द repressor and will inactivate it so that the operon will be functional and transcription occurs and the enzymes will be transcribed, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि इंड्यूसर कौन होता है, इंड्यूसर का एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। आपको पिक्चर्स याद रहेंगे, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, जीनोम रिफर्स टू,
जीनोम किसको कहते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए एक बार। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखिए कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से सेल निकाली गई, सेल से क्रोमोसोम 23 पेयर ये पता चला, 23 पेयर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम have DNA and the whole of the chromosomes present in the whole lot of the chromosomes with the whole content of DNA is known as genome। ठीक है, तो जो सारा डीएनए आपके बॉडी में है दैट इज नोन एज जीनोम। ह्यूमन जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन वन ह्यूमन सेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट अ सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो पूरा का पूरा जीनोम लेकर चल रही है अपने साथ। सो द जीनोम रेफर्स टू, जीनोम को क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज इंटायर जेनेटिक मटेरियल, मतलब इंटायर डीएनए। ठीक है, उसके अगर आप आंसर वन देखें, वन क्रोमोसोम, नो इट इज नॉट अबाउट वन क्रोमोसोम, it is not about one gene, it is not about one DNA strand, it is about the whole lot of the genetic material that is DNA in human being, and that's why it is known as genome। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन जीनोम इज प्रेजेंट इन, ह्यूमन जीनोम कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, लाइसोसोम्स में, किस में होता है? द करेक्ट आंसर इज बी, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ह्यूमन जीनोम, मतलब सेल के न्यूक्लियस में सारा का सारा डीएनए कवर्ड होता है। मैंने आपको डीएनए स्ट्रक्चर में ये बात बताई थी कि सारा का सारा डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आपका पूरा का पूरा सारा डीएनए जो है वो बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ विच प्रोटीन्स? जल्दी बताइए। You have to recall this and you have to tell me in the comment section कि डीएनए पूरा का पूरा किस तरीके से मतलब उतना बड़ा डीएनए कैसे फोल्ड होकर छोटे से डीएनए के फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में फिट किया जाता है। ठीक है, coming to question number 20, human genome project was completed in, here I have given a progressive timeline chart। 1990 में शुरू हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विद द कोलैबोरेशन और एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के एफर्ट के साथ शुरू हुआ था, 13 साल बाद 2003 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ था, मैसिव डीएनए एनालिसिस हुई थी और ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज हुई थी विच आर बीइंग यूज्ड टिल डेट इन जेनेटिक रिसर्च एज वेल एज मॉलिक्यूलर and inheritance research, one of the greatest achievement in the biological sciences। 13 साल की इस रिसर्च से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि आज भी उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिसर्च में यूज किया जाएगा। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, स्टार्ट हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अप्रॉक्सीमेटली 13 years, अप्रॉक्सीमेटली 13 साल में कंप्लीट हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज सी। Coming to question number 22, human genome contains approximately, ये याद रखिएगा इस चार्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेजर फाइंडिंग्स क्या थी कि अपने ह्यूमन जीनोम में सिर्फ 20 से 25,000 जीन्स ही एक्टिव है, जबकि है कितनी 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हैं अपने ह्यूमन जीनोम में, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 से 25,000 जीन्स ही एक्टिव जीन्स हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम को चला रही हैं। ठीक है, मोर देन 98% ऑफ द जीनोम इज ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, प्रीवियसली जिसको जंक डीएनए बोलते थे। 98% जीनोम जो है, 98% हमारा डीएनए जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसको जंक डीएनए बोलते हैं। सिर्फ 2% डीएनए जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, दैट 2% कंटेन्स दिस 20,000 to 25,000 जीन्स। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम जीन, क्रोमोसोम 1 जो है उसमें सबसे ज्यादा जीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम जो है उसमें सबसे कम जीन होती है। ये दो कंट्राडिक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको हर हाल में याद रखना है। 99.9% ह्यूमन जीनोम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब कि 99% जीनोम जो है मेरा, आपका, आपका, आपके सिबलिंग का, आपका, आपके पेरेंट्स का, सबका एक दूसरे से 99.9% एक्टिव है, सिर्फ 0.1% ही डिफरेंट है, जिसके कारण वी ऑल लुक सो डिफरेंट। लेस देन 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि 3.2 बिलियन बेस पेयर्स में से सिर्फ 20 to 25,000 जीन्स एक्टिव है, मतलब कि, और 98% जो है वो नॉन कोडिंग डीएनए है, मतलब जंक डीएनए है। तो इट मींस ओनली 2% ऑफ द डीएनए इज एक्टिव एंड कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटीन। सो सोच लीजिए कि वही 2% जो है हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा हुआ है, and it holds all the complications that every human being carries or every living being carries from one person to other or from one
to other. So human genome contains approximately कितना base pair? 3.2 billion base pair of genome. So the correct answer is D. ठीक है. Humans share approximately कितना percent of genetic similarity? कितना परसेंट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं? अभी मैंने बताया 99.9% हम सब एक दूसरे से सिमिलर है, बस 0.1% का डिफरेंस है, जिसके कारण वी लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आवर नेचर and our traits varies like anything. Answer is D. Which chromosome contain maximum gene? Chromosome number 1. अभी मैंने आपको बताया, so the correct answer is C. Maximum minimum genes किस पे present होते हैं? Chromosome number Y पर. So answer C is correct answer. Protein coding DNA constitutes approximately. Protein coding DNA केवल 2%, less than 2% है, ठीक है, तो less than 2%, D is the correct answer. चार्ट एक बार देख लीजिए ह्यूमन जीनोम की कॉम्पोजिशन. आपको अगर पाई चार्ट में इसको देखना हो तो 98% जो ब्लू है वो इनएक्टिव डीएनए है, जिसको हम जंक डीएनए भी बोलते हैं या नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं, ठीक है. लेस देन 2% जो है प्रोटीन कोडिंग डीएनए है, एंड दिस एक्चुअली फॉर्म्स द प्रोटीन्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. और नॉन कोडिंग डीएनए में आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आते हैं, इंट्रॉन्स आते हैं, रिपीट्स आते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बता रहे हैं जो आपके लेवल पे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी एंड फॉर टू जनरेट अवेयरनेस अमंग यू अबाउट द रिसर्च गोइंग ऑन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. उसके लिए बता दूं कि इसी नॉन कोडिंग डीएनए के पर आजकल बहुत सारे रिसर्च हो रही है. क्या इसके कुछ पार्ट्स को हम डिजीज ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? क्या इसके कुछ पार्ट्स से हम म्यूटेटेड जीन्स को ब्लॉक कर सकते हैं? कैसे ये पार्ट्स इस नॉन कोडिंग डीएनए का क्या कोई पार्ट है जो हमारे लिए कोई बहुत ही अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इफ इट इज इंजीनियर्ड एंड ऑल. सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द रिसर्च वर्ल्ड, ठीक है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27. द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए क्या है? कोडिंग, नॉन कोडिंग, राइबोसोमल, वायरल. एंड द करेक्ट आंसर इज बी. मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज नॉन कोडिंग. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन है ये. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक जिससे कि इंडिविजुअल्स के आइडेंटिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, और ये टेक्निक बेस्ड होता है यूनिक पैटर्न्स इन द डीएनए फ्रैगमेंट्स. ये जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट्स जब लेते हैं ना, तो हर एक का फिंगरप्रिंट डिफर करता है. ये सारा खेल वो 0.1% डिफरेंस का है जो हम सब में एग्जिस्ट करता है. सो दिस थंब इम्प्रेशन जब हम लेते हैं या फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डीएनए जो है वो डिफर कर रहा है कि नहीं, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन सा यूनिक डीएनए पैटर्न है एंड ऑल. लाइक फिंगरप्रिंट डीएनए पैटर्न्स आर यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल्स. फिंगरप्रिंट्स जैसे अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से डीएनए पैटर्न भी हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस. लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में भी थोड़ा डिफरेंट होता है. या आप फर्दर स्टडीज जब हायर स्टडी करेंगे, तो मैं यहाँ आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, जस्ट आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता दूँ कि इवन इन आइडेंटिकल ट्विंस ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन, जिससे कि वो बिल्कुल हूबहू भी एक तरह दिखते हुए भी एक तरह नहीं है, इवन उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है. ये पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो खेल है, इसको डेवलप किया था सर एलिक जेफरे ने इन 1985. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलिक जेफरे. द करेक्ट आंसर इज सी. Coming to question number 29, DNA fingerprinting is useful in किस एप्लीकेशन किस चीज में इनका कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस तो प्लांट का मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक फंक्शन है, तो वो वहाँ यहाँ पर तो उसका कोई रोल नहीं है. पैटर्निटी टेस्टिंग, पेरेंट्स आइडेंटिफाई करने में कौन किसका फादर है, कौन किसकी मदर है, फादर मदर बच्चा जो क्लेम कर रहा है उसी के हैं कि नहीं, ठीक है, तो पैटर्निटी टेस्टिंग में यस. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई रोल नहीं है. डीएनए रेप्लिकेशन में भी फिंगरप्रिंटिंग का कोई रोल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज पैटर्निटी टेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 30. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड अपॉन, किस चीज पर बेस्ड है? म्यूटेशन, रेप्लिकेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या ट्रांसलेशन? पॉलीमॉर्फिज्म पर, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म एंड वीएनटीआर आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये दो वर्ड्स आप याद रखिएगा, वीएनटीआर एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट की बेसिस है. पर्सन ए में रिपीट्स है 3, पर्सन बी में रिपीट्स है 5. तो आप देखिए इन रिपीट्स के कारण इन दोनों के डीएनए वेरी करेंगे. सो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआर का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. तो हर पर्सन में ये वीएनटीआर्स वेरी करते हैं, जिसके कारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी करती है. डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स, डिफरेंट डीएनए profiles. So the correct answer is polymorphism. Okay.
VNTR स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बताया कि VNTR का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। ठीक है। इंडिविजुअल्स डिफर बिकॉज ऑफ, इंडिविजुअल्स किस कारण से डिफर करते हैं? तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, सेम नंबर ऑफ रिपीट्स ए है ऑप्शन, नहीं। डिफरेंट VNTR रिपीट्स, यस। सेम DNA सीक्वेंस होगा तो नहीं वेरी करेंगे, सेम जीन होगा तो वेरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट VNTR रिपीट्स हो गए तो इंडिविजुअल्स वेरी करेंगे, एंड दिस इज व्हाई वी ऑल वेरी फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स देख लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले डीएनए निकालते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कराते हैं, देन जेल पर उसको चलाते हैं जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो बैंड निकलती है उसको सदन ब्लॉटिंग बोलते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं कि कितने कौन सी बैंड, मतलब बैंड्स देखते हैं, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब करते हैं, प्रोब से हाइब्रिडाइज करते हैं, देन ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, एंड देन डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार होते हैं। सो ये दिस इज द सीक्वेंस, इतनी सारी टेक्निक्स यूज होती है। कौन कौन सी? डीएनए आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, देन डीएनए सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदन ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब, ऑटो रेडियोग्राफी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो यहाँ पूछ रहा है कि सीक्वेंस अरेंज करिए, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। सदन ब्लॉटिंग, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी एंड डीएनए आइसोलेशन। सो डीएनए आइसोलेशन नंबर 1 पर आएगा। सो वन सी, अगर आप देख लें ऑप्शंस में देखें तो सी का 1 है। देन 4 सॉरी 4 आएगा, तो आप डी में देखें, डी और ए दोनों में 4 है, तो 4 के बाद आप क्या करेंगे? 4 के बाद आप अगर चारों ऑप्शंस देखें तो आप सदन ब्लॉटिंग कराएंगे। ठीक है, तो सदन ब्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो 4 के बाद, मतलब कि डीएनए आइसोलेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, देन सदन ब्लॉटिंग कराएंगे, देन ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीक्वेंस को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। सदन ब्लॉटिंग इन्वॉल्व, सदन ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, या प्रोटीन की प्रिपरेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डीएनए को हम मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि जो जेल निकलता है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उस जेल को हम एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, एंड देन उस मेम्ब्रेन पर हम प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, देन आगे की कहानी बढ़ती है। क्योंकि जेल बहुत ही फ्रेजाइल होता है, उसको हम एज सच मशीनों में नहीं, उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो हम उसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं डीएनए को, और यही सदर ब्लॉटिंग कहलाता है। बैंड पैटर्न इज विजुअलाइज्ड बाय, बैंड का पैटर्न हम किससे, बैंड का पैटर्न किस तरह से विजुअलाइज करते हैं? सो ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के सामने रख के हम बैंड का पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, या ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर उसको जैसे स्कैन किया जाता है वैसे डाल देते हैं, और वो पूरा का पूरा आपके मॉनिटर पर उसका पूरा इमेज बन के आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी, और यहाँ पर हम बैंड पैटर्न को देखते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, कौन सा इसमें एप्लीकेशन नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? क्राइम इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग में करते हैं, मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करने में करते हैं, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिजास्टर में किसी की मौत हो गई, कोई लॉस्ट हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए। दीज आर द थिंग्स वेयर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड एज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड इट इज एक्चुअली यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी का जमाना है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड forensic scientists come together to solve the issues. So which of the following is not an application? Crime investigation तो application है, ठीक है, paternity testing भी है, wildlife conservation भी है, protein synthesis is not the application of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting से protein synthesis नहीं करते हैं, so protein synthesis is not an application of DNA fingerprinting. is not and ये जो question में दिया रहता है ना, बड़े में लिखा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन। इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन, एलोलैक्टोज, जो कि एक्टिव फॉर्म है लैक्टोज का, एंड इज फाउंड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, मतलब लैक्टोज से प्रेजेंट है सराउंडिंग में। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? एलिक सेफ्रे। ह्यूमन सिमिलैरिटी कितनी होती है? 99.9% होती है। कोडिंग डीएनए लेस देन 2% है अपने ह्यूमन जीनोम में। ओपेरॉन के टाइप इंड्यूसिबल, ओपेरॉन किस टाइप का होता है? इंड्यूसिबल है। ठीक है, मार्कर यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वीएनटीआर है वो मार्कर जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। मार्कर का मतलब वो एक चीज जो कि डिफर करेगी हर एक इंडिविजुअल में। ठीक है,
जिसके कारण उसमें अगर कोई चेंज होता है तो हम पता कर पाएंगे कि वन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर और नॉट। या कोई अगर लॉस्ट है तो, और हमारे पास अगर डीएनए है, तो अगर उस लॉस्ट पर्सन का डीएनए मिल जाए तो दोनों एक ही है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। क्रोमोसोम में मैक्सिमम जीन कौन से क्रोमोसोम में होता है? क्रोमोसोम 1 में मिनिमम जीन, क्रोमोसोम वाई में। ये चार्ट के फॉर्म में हमें रखा है, इसको रिविजन आप कर सकते हैं। ओके, सो इन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने क्या क्या आज पढ़ा? लैकोपेरॉन पढ़ा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी। विद दिस वी आर डन विद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि पहले भी बहुत सारे मैंने वीडियो शेयर किए हैं इस पूरे सीरीज का। सो कीप वॉचिंग, do comment if you have any questions. Don't forget to like, share, and subscribe. Be with us, keep preparing, and get good marks, get selected. All the best. Thank you.